Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the another lecture of classical mechanics in which we will discuss about Lagrange's equation of motion. In earlier lecture, we have discussed about Lagrange's equation of motion of first kind. Now, Lagrange's equation of second kind, which is also known as Lagrange's equation of motion. तो इससे पहले के हमारे लेक्चर में हमने Lagrange's equation of motion of first kind के बारे में स्टडी की थी. यहां पर हम Lagrange's equation of motion of second kind के बारे में स्टडी करेंगे. एंड Lagrange's equation of motion of second kind is also known as Lagrange's equation of motion. In this lecture, we will discuss about Lagrange's equation of motion and the properties of kinetic energy function. तो आज के हमारे लेक्चर में हम Lagrange's equation of motion and properties of kinetic energy function के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे. So first of all, Lagrange's equation of motion, which is actually the Lagrange's equation of motion of the second kind. तो Lagrange's equation of motion of the second kind हम ले रहे हैं जो कि Lagrange's equation of motion भी कहलाता है. So Lagrange's equation of motion or Lagrange's equation of motion of the second kind. Let a system be rheonomic and holonomic having n particles and k holonomic constraint. तो यहां पर हम एक n पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं. ये सिस्टम रियोनोमिक एंड होलोनोमिक है और इसमें k holonomic constraints हैं. So the degree of freedom for this system is 3n minus k. Here n is the total number of particles whereas k is the holonomic constraint. तो इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n minus k होगा. Let n generalized coordinates are q1, q2, q3 up to qn. तो ये जो सिस्टम हमने लिया है इस सिस्टम के n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे q1, q2, q3, qn है. Therefore, the Cartesian coordinates are, Cartesian coordinates means x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है. Since there are n particles of this system, so there will be 3n Cartesian coordinate. And ये Cartesian coordinate क्या होंगे? x1 which is function of q and t, x2 this is also function of q1, q2, qn and t. In the same way, if we find the ith Cartesian coordinate, then it will be xi, and xi will be the function of q1, q2, qn and t. So first Cartesian coordinate हमारा x1 है, which is function of q and t. Second Cartesian coordinate is x2, which is also function of q and t. In the same way, ith Cartesian coordinate या iवा Cartesian coordinate हमारा xi होगा, which is also the function of q and t. So सारे Cartesian coordinate q and t के फंक्शन होंगे या पोजीशन एंड टाइम के फंक्शन होंगे. Now, nth Cartesian coordinate will be x3n
एंड इट विल बी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम। तो इस टाइप से कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो वो हमारे पोजीशन एंड टाइम के फंक्शन होंगे, क्यू एंड टाइम के फंक्शन होंगे। Therefore, Cartesian velocity components are, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको पता है तो कार्टेशियन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्स आई हमारा फंक्शन ऑफ क्यू एंड टी था। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स टाइम डेरिवेटिव अगर लें तो हमको कार्टेशियन वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेंगे। सो एक्स आई डॉट इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी टी। सो इस एक्स आई का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। सो एक्स आई डॉट क्या आएगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट, क्योंकि जे की वैल्यू हमारी 1 से लेके n तक चेंज हो रही है इसलिए यहां पर हमने सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n लगाया है। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ith कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो ith कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन वेलोसिटी हमारी एक्स आई डॉट होगी जो कि हम इस फॉर्मूले से देंगे। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यूजे डॉट तो क्या आएगा, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे, क्योंकि ये हमारा क्यूजे डॉट का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, जबकि ये हमारा कांस्टेंट होगा और क्यूजे डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा। सो डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे। ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे। अब एक्स आई हमको पता है, अगर हम पहले इसका पोजीशन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें और उसके बाद में टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल करें तो वो क्या आएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे इंटू क्यू आई डॉट। तो पहले हमने डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल किया है एंड फिर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन डिफरेंशियल किया है, और क्योंकि एक्चुअल में हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था इसलिए फर्दर क्यू आई का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्यू आई डॉट आएगा। अब यहां पर हम ऑलरेडी क्यूजे ले चुके थे इसलिए यहां पर हमने क्यू आई लिया है एंड यहां से अगर हम डेल बाई डेल क्यूजे बाहर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल क्यूजे ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल टी प्लस डेल एक्स आई बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल क्यूजे ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल टी प्लस डेल एक्स आई बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। एंड ये हमारा इस इक्वेशन से एक्स आई डॉट है तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से रख दें। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यूजे और डेल बाई डेल क्यूजे ऑफ एक्स आई डॉट। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे इज इक्वल टू डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यूजे। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे, एंड एक इक्वेशन हमारे पास में आई है
डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे. These two equations are valid for both rheonomic and scleronomic system, that is irrespective of whether xi depends explicitly on time or not. तो हमारे पास में ये जो दो इक्वेशन आई हैं, these two equations are valid for both rheonomic and scleronomic system. तो रियोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक सिस्टम दोनों के लिए ये इक्वेशन वैलिड है. इट मींस एक्स आई चाहे तो आपका टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट हो, ये इक्वेशन हमारी वैलिड होगी. इट मींस चाहे एक्स आई हमारा टाइम पर डिपेंड करे या टाइम पर डिपेंड नहीं करे, ये दोनों इक्वेशन हमारी वैलिड होंगी. एनी इन्फिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. अब हम इन्फिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा एक्स आई था. तो अगर एक्स आई में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमारा डेल्टा एक्स आई होता है. सो एनी इन्फिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू डी एक्स आई एट डी टी इक्वल टू 0. और ये क्या आ जाएगा डेफिनेशन से, डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे. नाउ डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर दिस सिस्टम. सो अगर हम इस सिस्टम के लिए डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लिखें तो वो क्या आएगा, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा था एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0. नाउ ये डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है जो अभी हमने शो किया था. हियर फर्स्ट टर्म मीन्स एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई. तो अगर हम इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म लें तो वो क्या आएगी, एंड डेल्टा एक्स आई इज infinitesimal small virtual displacement which is del xi upon del qj into delta qj. तो इस डेल्टा xi को हम इससे रिप्लेस कर दें. सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू, ये टर्म एज इट इज. अब डेल्टा एक्स आई को हम डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे लिख रहे हैं. सो डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे. सिंस डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे. तो अगर हम एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे का टाइम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, एम आई हमारा कांस्टेंट. पहले हम डी एक्स आई बाई डी टी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं और डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे को हम एज इट इज छोड़ देते हैं. एंड देन एम आई ऑलरेडी कांस्टेंट है, डी एक्स आई बाई डी टी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं एंड डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं. इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे इज इक्वल टू एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू, ये हमारा एज इट इज. सो डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे प्लस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी एज इट इज. और अब हम डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल करेंगे. सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे. और यहां से हम एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, एम आई डी टू एक्स आई अपॉन डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे माइनस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे. मीन्स इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये फैक्टर हमारा लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. सो
ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे की वैल्यू हमको ये मिली है, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह रख दें। सो एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई क्या जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो फर्स्ट टर्म हमको ये मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई विल बी एक्स आई डॉट, सो इसकी जगह हम एक्स आई डॉट लिख देते हैं एंड डी एक्स आई बाई डी टी हमारा एक्स आई डॉट हो गया, तो यहां पे भी हमने एक्स आई डॉट लिख दिया है। सो एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू इंटू डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई एक्स आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। बट डेल एक्स आई डॉट बाई डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे, सो डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे की जगह हम डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट लिख देते हैं। ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे, तो इसकी जगह आप डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे लिखो, तो ये वैल्यू तो हमारी डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट होगी और ये वैल्यू हमारी डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे होगी। इट मीन्स एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई विल बी डी बाई डी टी ऑफ एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इंटू डेल्टा क्यू जे, क्योंकि इसकी जगह हमने ये लिखा है एंड माइनस एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे हमारा डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे है। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एज इट इज एंड एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट को हम डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ओपन करोगे तो हाफ कांस्टेंट एम आई भी कांस्टेंट एंड एक्स आई डॉट स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट क्या आएगा, टू एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और टू एक्स आई डॉट से जो टू आया था वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसको हम ओपन करें तो वापस हमको एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट मिलता है। इसलिए इसको हमने डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर लिख दिया है एंड डेल्टा क्यू जे एज इट इज माइनस, अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो हाफ हमारा कांस्टेंट एम आई भी कांस्टेंट, एक्स आई डॉट स्क्वायर का क्यू जे के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करोगे तो वो क्या आएगा, ट्वाइस एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे एंड एक्स आई डॉट स्क्वायर से जो ट्वाइस एक्स आई आया था वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर ये हमारे एक्चुअल में एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे ही है, तो इसको हमने ये लिख दिया है एंड डेल्टा क्यू जे हमारा एज इट इज। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। लेट टी इक्वल टू हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर एंड दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv स्क्वायर होती है एंड v इक्वल टू एक्स आई, इट मीन्स half mi xi dot square is actually the total kinetic energy of the system in Cartesian coordinate system and this will be replaced by t. तो इसको हम t लिख देते हैं और ये भी हमारा t हो जाएगा. It means mi d2xi by dt2 delta xi क्या आ जाएगा d by dt of del t by del qj dot, क्योंकि ये हमारा कैपिटल T हो गया, माइनस डेल टी बाई डेल क्यूजे क्योंकि ये हमारा टी है एंड डेल्टा क्यूजे हमने दोनों से कॉमन ले लिया है, सो इनटू डेल्टा क्यूजे. सो फर्स्ट टर्म ऑफ डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इज एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई एंड दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे. नाउ ये हमारा डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था. अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं. सेकंड टर्म मीन्स माइनस एफ आई अप्लाइड इंटू डेल्टा एक्स आई. सो सेकंड टर्म इज माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा एक्स आई इज infinitesimal small virtual displacement and this will be actually del xi by del qj into delta qj. so delta xi को हम ये लिख देते हैं. so second term हमारी क्या हो जाएगी माइनस एफ आई अप्लाइड डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, ये हमारी सेकंड टर्म है. अब एफ आई अप्लाइड डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे को हम क्यूजे लिख सकते हैं. इट मीन्स ये हमारी टर्म क्या हो गई माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यूजे. हियर कैपिटल क्यूजे इज fi applied del xi upon del qj and this is known as jth component of the generalized force. तो generalized force का jth component हमारा ये होगा जिसको हमने कैपिटल qj लिखा है. if qj is angle then capital qj will be the torque corresponding to the angle qj. so अगर qj हमारा एंगल है इट मीन्स एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं. so अगर कोऑर्डिनेट हमारा या पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारा एंगल है सो कैपिटल qj हमारा टॉर्क होगा जो कि इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा. so if qj is angle then capital qj will be the torque corresponding to the angle qj. so angle qj के corresponding torque हमारा capital qj है. now ये हमारा डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था. फर्स्ट टर्म हमने ये निकाली थी एंड सेकंड टर्म हमारी ये है. so अगर माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई की जगह हम माइनस कैपिटल qj डेल्टा qj लिखें एंड एम आई डी टू एक्स आई बाई dt2 डेल्टा xi की जगह d by dt ऑफ del t by del qj डॉट माइनस del t by del qj इंटू डेल्टा qj लिखें. मीन्स इससे और इससे वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या हमको मिलेगा d by dt ऑफ del t by del qj डॉट माइनस del t by del qj माइनस कैपिटल qj डेल्टा qj इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन हमको मिल गई है. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है. सिंस qj is coordinate and this coordinate are independent then all delta qj's can be arbitrary. so qj कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है. so अगर qj इंडिपेंडेंट है
इट मीन्स ऑल डेल्टा क्यूजेस कैन बी आर्बिट्ररी। तो जितने भी डेल्टा क्यूजे होंगे वो हमारे आर्बिट्ररी होंगे, मीन्स जीरो नहीं होंगे। और हमने कहा है कि ये टोटल वैल्यू जीरो है। सो अगर ये जीरो नहीं है, इट मीन्स जो रिमेनिंग क्वांटिटी है दैट इज डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यूजे माइनस कैपिटल क्यूजे विल बी इक्वल टू जीरो। Therefore, above equality holds good if and only if the individual coefficient of each delta qj is separately zero. So, ये इक्वेशन हमारी केवल उसी कंडीशन में सेटिस्फाई होगी, उसी कंडीशन में वैलिड होगी अगर हम डेल्टा क्यूजे के कोफिशिएंट लें और हर इंडिविजुअल कोफिशिएंट हमारे सेपरेटली जीरो हो। डेल्टा क्यूजे का कोफिशिएंट हमारा ये है, इट मीन्स ये वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यूजे इज इक्वल टू कैपिटल क्यूजे एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेकंड काइंड। ये जो इक्वेशन हमको मिली है, दिस इक्वेशन इज Lagrange's equation of motion of the second kind. Here, generalized velocity is, इस इक्वेशन के अंदर जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है? qj dot. So qj dot is generalized velocity, qj is generalized coordinate, and ये जो इक्वेशन है, this equation is Lagrange's equation of motion of the second kind. Now, properties of kinetic energy function. So, kinetic energy function की अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फंक्शन। लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रियोनॉमिक सिस्टम बी T इक्वल टू हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर। सो हम कोई रियोनॉमिक सिस्टम ले रहे हैं एंड उस रियोनॉमिक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारी T है एंड T इक्वल टू हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर xi which is function of q and t। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा xi है and xi is actually the function of q and t। q means q1 q2 up to qn and t हमारा टाइम है। तो पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एंड कार्टेशियन वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इस xi का आप डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो xi डॉट इक्वल टू डेल xi अपॉन डेल t प्लस डेल xi अपॉन डेल qj इनटू qj डॉट। सो कार्टेशियन वेलोसिटी या वेलोसिटी की वैल्यू हमको xi डॉट मिली है जो कि हमारी ये है। नाउ इस xi डॉट की वैल्यू आप यहां पर रखो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रियोनॉमिक सिस्टम विल बी हाफ एम आई डेल xi अपॉन डेल t प्लस डेल xi अपॉन डेल qj इनटू डेल्टा qj डॉट होल स्क्वायर। तो इस xi डॉट की जगह हमने ये वैल्यू रखी है। अब होल स्क्वायर को ओपन करें। सो पहले इसके लिए स्क्वायर होगा, फिर ट्वाइस ए बी आएगा, फिर इसके लिए स्क्वायर होगा। सो कैपिटल T इक्वल टू हाफ एम आई डेल xi अपॉन डेल t होल स्क्वायर प्लस हाफ एम आई एज इट इज इनटू ट्वाइस ऑफ डेल xi बाय डेल t इनटू डेल xi अपॉन डेल qj इनटू qj डॉट। सो जो 2 आया था वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? प्लस एम आई डेल xi बाय डेल t इनटू डेल xi बाय डेल qj इनटू qj डॉट प्लस हाफ एम आई। अब ये वाली टर्म बची हुई है तो इसका भी स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? डेल xi अपॉन डेल qj इनटू qj डॉट इनटू डेल xi बाय डेल ql इनटू ql डॉट। क्योंकि j हमारा ऑलरेडी आ गया था
इसलिए सेकंड टाइम हमने एल लिया है। सो टी इक्वल टू दिस वन, and if we denote this term by t naught, this term by t1 and this whole term by t2, so अगर इसको हम t naught लिखें, इसको t1 लिखें और इसको t2 लिखें, so t equal to t naught plus t1 plus t2. Here t naught is half mi del xi upon del t whole square, जिसको हमने a नॉट लिखा है, t1 इक्वल टू mi डेल xi बाई डेल टी इंटू डेल xi अपॉन डेल qj इंटू qj डॉट। तो ये जो टर्म है mi डेल xi बाई डेल टी इंटू डेल xi अपॉन डेल qj, इसको हमने aj लिख दिया है एंड qj डॉट एज इट इज। सो सेकेंड टर्म को हम t1 लिख सकते हैं। हियर aj इक्वल टू mi डेल xi बाई डेल टी इंटू डेल xi बाई डेल qj, से ये हमारा पूरा aj है, एंड t2 इक्वल टू हाफ mi डेल xi बाई डेल qj इंटू qj डॉट डेल xi बाई डेल ql इंटू ql डॉट। नाउ mi डेल xi बाई डेल qj इंटू डेल xi बाई डेल ql, इसको हम ajl लिखते हैं। सो t2 क्या आ जाएगा, हाफ ajl qj डॉट इंटू ql डॉट। सो t2 की वैल्यू हमको ये मिल गई है। हियर ajl इक्वल टू mi डेल xi बाई डेल qj इंटू डेल xi बाई डेल ql। सो ये टर्म इंटू ये टर्म हमारी ajl हो गई है। सो t2 हमारा क्या हो गया, हाफ ajl qj डॉट ql डॉट। सो t इक्वल टू a डॉट प्लस aj qj डॉट प्लस हाफ ajl qj डॉट ql डॉट। सो ये पूरा हमारा t आ गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई है। नाउ फॉर स्क्लेरोनोमिक सिस्टम एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो अगर हम स्क्लेरोनोमिक सिस्टम की बात करें तो स्क्लेरोनोमिक सिस्टम में एक्स हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है, यह टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। और टाइम डिपेंडेंट अगर नहीं है, इट मींस अगर आप टी नॉट निकालोगे तो ये वैल्यू हमारी जीरो, सो टी नॉट इक्वल टू जीरो। t1 निकालोगे तो ये वैल्यू हमारी जीरो, इट मींस t1 इक्वल टू जीरो। एंड t हमारा क्या था, t नॉट इक्वल टू t1 इक्वल टू जीरो आ गया है, एंड t हमारा था t नॉट प्लस t1 प्लस t2। सो t नॉट भी हमारा जीरो, t1 भी हमारा जीरो, इट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू t2। सो t इक्वल टू t2। सो फॉर स्क्लेरोनोमिक सिस्टम the total kinetic energy T will be T2, and T2 is actually half mi del xi by del qj into del xi by del ql qj dot ql dot, or T2 equal to half ajl qj dot ql dot, where ajl is given by this equation. Since Lagrange's equation of motion is d by dt of del t by del qj dot minus del t by del qj is equal to qj। अब Lagrange's equation of motion हमारी ये थी, and capital T is the total kinetic energy which is actually t naught plus t1 plus t2। तो t यहां पर हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जो t नॉट प्लस t1 प्लस t2 होगा। इट मींस अगर इस t को हम t नॉट प्लस t1 प्लस t2 से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, d बाई dt ऑफ डेल बाई डेल qj डॉट ऑफ t नॉट प्लस t1 प्लस t2 माइनस डेल बाई डेल qj ऑफ t नॉट प्लस t1 प्लस t2 is equal to qj। Therefore, Lagrange's equation of motion are second order linear coupled differential equation in
qj, provided capital qj's are not explicitly function of small qj's. So Lagrange's equation of motion हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है स्मॉल क्यूजे में. कंडीशन ये है कि कैपिटल क्यूजेस आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यूजेस. कैपिटल क्यूजे हमारा स्मॉल क्यूजे का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होना चाहिए. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ कैपिटल क्यूजे इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. अगर कैपिटल क्यूजे हमारा पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, इट मीन्स कैपिटल क्यूजे इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 qn and t. In this case, ordinary potential energy function v, which is function of position and time, exist. So अगर कैपिटल क्यूजे हमारा पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, q एंड t का फंक्शन है, तो इस केस में ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा. एंड ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारा v होता है, एंड v विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम एंड इट विल एग्जिस्ट हियर ऑल्सो. कैपिटल क्यूजे इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल क्यूजे. सो कैपिटल क्यूजे हमारा माइनस डेल v बाय डेल क्यूजे होगा, एंड v हमारा ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है. हियर j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. सो j की वैल्यू 1 2 3 अप टू n है. नाउ Lagrange's equation of motion of second kind और Lagrange's equation of motion हमारा ये था. अब यहां पर कैपिटल क्यूजे की जगह आप माइनस डेल वी बाई डेल क्यूजे रखो. सो जैसे ही आप यहां पर माइनस डेल वी बाई डेल क्यूजे रखोगे, ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी और हमको क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यूजे प्लस डेल वी बाई डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन को साथ में ले लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, d is the function of only position and time. It means del v by del qj डॉट की वैल्यू 0 होती है. सो हम क्या करते हैं, इस t की जगह हम t माइनस v लिख देते हैं और यहां पर जो j है वो 1 2 3 अप टू n होगा. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यूजे डॉट ऑफ t माइनस v. क्योंकि v हमारा पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, मीन्स क्यूजे डॉट का फंक्शन नहीं है. सो डेल वी बाई डेल क्यूजे डॉट हमारा 0 होता है, इसलिए इस t को मैंने t माइनस वी लिख दिया है. और इन दोनों को अगर साथ में लें, सो माइनस डेल बाई डेल क्यूजे ऑफ t माइनस वी इज इक्वल टू 0. और इस t माइनस वी को हम l लिख देते हैं. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन हमको मिल गई है. हियर एल इज t माइनस वी, यहां एल t माइनस वी है. t इज टोटल काइनेटिक एनर्जी वेयर एज v इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड j is running from 1 to n. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, d by dt ऑफ डेल l अपॉन डेल qj डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल qj is equal to 0. Here j is running from 1 to n. Also l equal to t minus v. तो ये अभी हमने इक्वेशन निकाली है. Here L is the function of Q and Q dot, or L is the function of Q1, Q2 up to Qn, Q1 dot, Q2 dot up to Qn dot. It means L is the function of position and velocity. तो यहां पर L हमारा position and velocity का फंक्शन है या Q and Q dot का फंक्शन है. It is actually
the Lagrangian of the system and the n equations are called the Euler-Lagrange equation of motion. तो ये जो L है, this L is actually the Lagrangian of the system. और यहां से जो हमको n equations of motion मिल रही हैं, these equations are known as Euler-Lagrange equation of motion. These are a system of second order coupled linear differential equation in QJ. तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं या ये जो सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम ऑफ सेकंड ऑर्डर कपल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन QJ. Second case, if velocity dependent potential is there, so अगर पोटेंशियल हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इट मींस कैपिटल QJ इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम. तो कैपिटल QJ हमारा q डॉट एंड t का फंक्शन है. इट मींस पोटेंशियल इज वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल and QJs are derivable from a potential energy function U. तो कैपिटल QJ जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन U का डेरिवेबल है. मींस इसके डिफरेंशियल से हम कैपिटल QJ निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. इट मींस U विल बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम. तो U भी हमारा q डॉट एंड t का फंक्शन होगा या पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन होगा. हियर u इज जनरलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. तो ये जो u आया है, दिस इज जनरलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. नाउ लैग्रेंज इक्वेशन हमारी ये थी. अब कैपिटल QJ को हम u के टर्म्स में लिख देते हैं. तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, d by dt of del t by del QJ dot minus del t by del QJ is equal to d by dt of del u by del QJ dot minus del u by del QJ. अब इस पूरे को हम लेफ्ट में ले लें. सो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को साथ में ले लो और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को साथ में ले लो. तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, d by dt of del by del QJ dot t minus u minus del by del QJ of t minus u is equal to 0. and j is running from 1 to n. और ये जो t minus u है इसको भी हम n लिख देते हैं. so j is running from 1 to n. अब इक्वेशन हमने ये निकाली थी. now let l equal to t minus u. तो ये जो t minus u है इसकी जगह आप l रख दो. तो जैसे t minus u को हम l लिखेंगे, ये इक्वेशन हमारी चेंज होकर क्या हो जाएगी, d by dt of del l upon del QJ dot minus del l by del QJ is equal to 0. Here j is running from 1 to n. This l is also known as Lagrangian of the system. तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो l है, this is also the Lagrangian of the system. It means अगर पोटेंशियल हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम निकाल रहे हैं उसके अंदर जो L होगा वो t माइनस u होगा. और अगर पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में लैग्रांजियन जो होगा, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वो L इक्वल टू t माइनस v होगा. Here u is called the generalized potential. So u हमारा generalized potential है. Here we end our lecture. In this lecture, we have studied about Euler-Lagrange equation of motion, Lagrange equation of motion of the second kind, and the properties of kinetic energy function. So, goodbye.